Good afternoon, everyone, and welcome to TMC Virtual Classroom. This is Shafi Ahmed from school number 106 Shimla Park, Kosa. Today, we are going to deal with the last few paragraphs of chapter 4.2 entitled as PV Sindhu, an icon of success. As per the last two chapters on this very lesson, you are very much familiar with PV Sindhu, her achievements she got by winning tournaments and honors she received. So, moving on, today we are going to see what PV Sindhu want to give us a message. On page number 86, by going through the lines, we will try to understand the meaning. Here we go. PV Sindhu has been pushing the envelope like no young badminton player had done before in the history of women's badminton in India. We all know that success requires a lot of hard work. Similarly, PV Sindhu does the same. How she does it? By pushing the envelope. It means try to reach beyond what is possible. One thing I would like to say, there are few words printed in bold font. Don't just take them as the difficult words. We can take them as the punchline. And those words should always be remembered. तो बहुत मेहनत के जरिए से अपने आप को अपनी लिमिट को पुश करना, पुशिंग द एनवेलप, नो यंग बैडमिंटन प्लेयर हैड डन बिफोर, उससे पहले किसी ने नहीं किया था, जैसी कोशिश, जैसा प्रयास किसी ने नहीं किया था, वैसा पीवी सिंधु ने किया. मूविंग टू द नेक्स्ट पैरा. एट एन इंटरव्यू, Sindhu was asked how much mentoring, guidance her father and mother had been able to give her and how involved they were in her sports career. The question was about the role of her parents. उसके पेरेंट्स का क्या योगदान था उसके करियर में. Mentoring. Mentoring means training. उसके पेरेंट्स ने क्या योगदान दिया, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था. सो इन हर ओन वर्ड्स, व्हाट डिड शी रिप्लाई? उसने क्या कहा? गाइडेंस वाइज, एवरी टाइम आई गो फॉर नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स, दे accompany me there, and when I practice and play, they tell me what I am doing. It means whenever PV Sindhu has to participate in any tournament, they were with her. जब कभी भी पीवी सिंधु को किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होता था, वो उसके साथ रहते थे. Not just be with her, but they also guided her and told them after practice or play what I am doing, what means she was doing. उसकी प्रैक्टिस के बाद और उसके खेल के बाद वो उसे बताते थे कि उसने कैसा किया. Especially, further she says, my dad gives me a summary of how I play and it is very helpful because as outsiders, those who look at it know more about the game. खास तौर पर वो अपने डैड के बारे में कहती है. Her dad used to give her a summary. What is mean by summary?
समरी मीन्स ब्रीफ, उसको शॉर्ट करके बताना. एंड शी सेज दैट इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर हर. Why helpful? Because as outsiders, those who look at it know more about the game. A person sitting outside and looking at a fielder or a player, how he or she is doing, by doing this, he may give some suggestions that can be very helpful. बाहर बैठकर देखने वाला बाय चांस हमें ऐसे यूजफुल पॉइंट्स बता सकता है जो प्लेयर के लिए आसान अच्छे होंगे. फर्दर, as badminton players, we obviously know a few things, but someone from the outside can pinpoint stuff and we may not have noticed easily. Being a player, we know very much about that game. एक खिलाड़ी होने के नाते हम उस गेम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. बट अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड कैन पिन पॉइंट द स्टफ. स्टफ मीन्स matters to be considered. That is why each and every team or even individual players, they have their coach. What does the coach do? First of all, he observe the play very minutely. बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से वो उनके गेम को ऑब्जर्व करता है. Later, he points out the mistakes. वो मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करता है. Also give suggestions. साथ ही साथ वो उसके सजेशन भी देता है. Okay? So moving on, what she says. So both as counselor and parents, it is really helpful. She says that her parents had dual role. उसके पेरेंट्स का डबल रोल था. The first one, that is, they were the parents, and later counselors. Counselors means a person who gives advice, जो मशवरे देता है. Okay? But now let's move to the next paragraph. In the same interview, a practical question was asked. It's not possible for a badminton player to win week in and week out. As we know that it's a fact. Whenever we play, we might be the winner or we might lose the game. It is impossible for anyone that he might be the winner always. ऐसा कभी नहीं हो सकता. आप कोई भी गेम खेलते हो, कभी आप जीतोगे, कभी डेफिनेटली हारोगे. Week in and week out. This is the most important point. Means आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमेशा जीतो, कभी ना कभी आप हारोगे. As a top player, how did she manage to just go to a tournament and psychologically deal with an early loss? Did it hurt when she didn't win? It was the question asked her in the interview. तो उससे ये पूछा गया था, as a top player, how did she manage to just go to a tournament and psychologically deal with an early loss? Whenever a player participates in a tournament, जब कभी भी कोई प्लेयर किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है, there is a pressure on him or her. उसके ऊपर एक प्रेशर होता है. What kind of pressure? This is psychologically. It means the pressure which affects our thought, our mind, as well as our emotions. हमारे जहन पर, हमारे दिमाग पर और हमारे जो एहसास जज्बात होते हैं उस पर भी वो अफेक्ट करता है. तो वहां जाकर किसी टूर्नामेंट में हारने के बाद ये जो प्रेशर होता है उसको कैसे डील करते हैं.
What she replied? To this, she replied, if you don't play well and lose in the first round or second round, you feel bad, especially if you are one of the top players. वो कहती है, अगर आप अच्छा नहीं खेलते हो, if you don't play well, definitely you will lose the game, maybe in the first round or second round. आप पहले राउंड में या दूसरे राउंड में ही हार के बाहर हो सकते हो. बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट? इसमें सबसे ज्यादा अहम बात क्या है कि अगर आप टॉप के प्लेयर हो, इफ यू आर वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, इट फील्स बैड. आप टॉप के प्लेयर्स हो और अर्ली स्टेज में आप डिफीट खा जाते हो, आप हार जाते हो, आपको बहुत बुरा लगता है. बट you need to come out of it and practice harder and identify and learn from your mistakes. It's not a bad thing to lose the game. हारना कोई बुरी बात नहीं है. हमें क्या करना है? You have to come out of it. हमें उससे बाहर आना है. We have to succeed in dealing with. जो भी हमारा प्रॉब्लम है, जो भी हमारे फॉल्ट्स हैं, हमें उससे बाहर आना है. How we can do this? For this, we have to remember two things. First of all, we have to increase our practice. We have to do harder, a lot of hard work. हमें अपनी प्रैक्टिस हार्डर करनी है. Second thing is, we have to identify our mistakes. हमने क्या गलतियां की, क्या हमारी मिस्टेक्स थी, हम पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम. हमें अपनी उन गलतियों से आगे और सीखना है सो दैट वी कांट रिपीट देम, ताकि हम आगे उनको रिपीट ना कर सकें. बट व्हाट शी सेज फर्दर, आई थिंक टू कम आउट ऑफ इट, इट टेक्स टाइम. ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही दिन में अपनी प्रैक्टिस करें, अपनी गलतियों को देख लें और दूसरे दिन से हमारी वो मिस्टेक्स सॉर्ट आउट हो जाएं. नो, इट टेक्स टाइम. इसमें वक्त लगता है. मे बी फ्यू डेज, फ्यू वीक्स और इवन फ्यू मंथ्स. इट्स मैटर ऑफ टाइम. बट ups and downs are always there and you need to cope with it. Ups and downs. We know that every road has turns and curves. Similarly, in a sports career, every player has ups and downs. Ups and downs means उतार चढ़ाव. कभी ऐसा होता है कि कोई प्लेयर रैंकिंग में बिल्कुल टॉप पर होगा. That is the upper part. He is enjoying in his career. Later, she may be degraded. He or she may be degraded. कभी वो नीचे आ जाएगा. ये क्या हुआ? उसका डाउन हो गया. It's a part and participle of game. Ups and downs are there and you need to cope with it. और हमें उसके साथ में अपने आप को मैनेज करना है. तो cope उसी के साथ जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं. कभी हम बहुत अच्छा खेलेंगे, जीतेंगे, कभी हमारा खेल अच्छा नहीं होगा, हम हारेंगे. वी हैव टू डील विद, वी हैव टू गो विद द फ्लो. हमें उसके साथ ही चलना है. सो गाइस, these were the points पीवी सिंधु want to put forth us. ये कुछ पॉइंट्स थे पीवी सिंधु ने जो हमसे शेयर किए. दैट इज अबाउट रोल ऑफ हर पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स का क्या योगदान रहा, उसके पेरेंट्स ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, व्हाट डिफिकल्टीज वन कैन फेस इन स्पोर्ट्स करियर.
इस हमारे स्पोर्ट्स करियर में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ वी कैन कम ओवर दोज प्रॉब्लम्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस तरह से हम हमारी उन डिफिकल्टीज को, उन प्रॉब्लम्स को आगे उनसे बढ़ सकते हैं, उनसे निकल सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज। हमें जो है तो कुछ क्वेश्चंस यहां पर हैं, उसका हम जल्दी से आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हैज बीन सिंधु पुशिंग द एनवेलप। पीवी सिंधु जो है किस तरह से अपने आप को आगे तक ले जाने की कोशिश कर रही थी। द आंसर शुड बी like no young badminton player had done before in India's women badminton history। इंडिया की बैडमिंटन हिस्ट्री में पहले किसी यंग प्लेयर ने जैसा नहीं किया था, ऐसा उसकी कोशिश थी, उसका प्रयास था। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु अकम्पनीड सिंधु ड्यूरिंग नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स। नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स के दौरान पीवी सिंधु के साथ कौन होता था। द आंसर इज हर पेरेंट्स। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर अ बैडमिंटन प्लेयर। किसी भी बैडमिंटन प्लेयर के लिए क्या चीज है जो इम्पॉसिबल है, शक्य नहीं है, मुमकिन नहीं है। वी कैन से दैट टू विन वीक इन एंड वीक आउट, कि हमेशा हमेशा जीतना, ऑलवेज बी अ विनर, दैट इज इम्पॉसिबल थिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फील्स बैड। कौन सी बात है जो हमें बहुत बुरी लगती है। टू दिस वी कैन से दैट व्हेन यू आर वन ऑफ द टॉप प्लेयर एंड यू लूज इन द फर्स्ट और सेकेंड राउंड, जब आप अपने शिखर पर होते हो, अपने करियर में चोटी पर होते हो, टॉप पर होते हो, और आप पहले या दूसरे राउंड में हार जाओ, दिस फील्स रियली बैड। ये हमें बहुत बुरा लगता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में कुछ वर्ड्स हैं जो एज अ नाउन यूज किए गए हैं। वी हैव टू फाइंड आउट देम। व्हाट मे बी दोज, वो क्या हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है गाइडेंस, नेक्स्ट इट मे बी टूर्नामेंट्स, नेक्स्ट वन इज प्लेयर्स, देन काउंसलर एंड स्टाफ। All these words have been used as noun in this passage. We have English workshop, that are the textual questions, in which first of all we have to complete the words by filling the missing letters. Words कुछ आपको दिए गए हैं, उसमें कुछ letters missing हैं, we have to fill those. In that we need an N to enhance. पहले वर्ड में हम एन लगाएंगे तो वो इनहैंस हो जाएगा। लेटर वी नीड ए टू कंप्लीट इट, दैट इज फीचर। सिमिलरली वी ऑल्सो नीड ए टू लॉन्च एंड ई फॉर बीइंग नोट वर्दी। नेक्स्ट वर्ड में हम ई लगाएंगे तो वो हो जाएगा नोट वर्दी। एंड वी नीड ई फॉर अ मेंटर, and we always need a T to identify. In the next part, there is a word given that is contemporary. What we have to do? We have to make as many 3-letter and 4-letter words from the given word. So, what can be those words? एक शब्द, एक लफ्ज दिया हुआ है contemporary, उससे हमें ज्यादा से ज्यादा 3 letters और 4 letter words बनाने हैं। So those can be can, rare, rope, rent, rat, rate, year, may, moon, poor, try, pray,
पार्ट, कार्ट, कैट एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स उसमें हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। यहां पर कुछ फ्रेजेस, कुछ इडियम्स दिए हुए हैं। वी हैव टू यूज देम एंड टू मेक आवर ओन सेंटेंस। इन दैट द फर्स्ट वन इज टू एनहांस फर्दर। टू एनहांस फर्दर मीन्स टू इम्प्रूव, किसी चीज को और बेहतर करने की कोशिश करना। सो फॉर दैट वी कैन से दैट साहिल वर्कड हार्ड टू एनहांस फर्दर हिज बॉलिंग स्किल्स। साहिल एक बॉलर है, उसने अपनी बॉलिंग की स्किल्स, सलाहियत या क्षमता बढ़ाने के लिए उसने बहुत मेहनत की। नेक्स्ट वन इज टू लॉन्च। टू लॉन्च मीन्स टू इंट्रोड्यूस। For this, we can say that being a great producer, Bajaj want to launch his son in his films. Third one is to create history. It means to make records, to set records. For this, we have the best example, that is Sachin Tendulkar created history by scoring more than 15,000 runs in his career. Next is push the envelope, means try your best. To this we can say that every team is pushing the envelope to win the World Cup. Okay? World Cup में हर टीम जीतने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। नेक्स्ट इज वीक इन एंड वीक आउट। इसके लिए हम कह सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू सक्सीड वीक इन एंड वीक आउट। एंड द लास्ट वन इज टू कम आउट ऑफ, यानी किसी चीज से बाहर आना। फॉर दिस वी हैव अ सेंटेंस, वी नीड आवर फैमिली सपोर्ट टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस। के जब हम कभी तनाव में होते हैं, मानसिक तनाव में, उससे बाहर निकलने के लिए हमें हमारे फैमिली का सपोर्ट जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टेस्टिंग योर मेमोरी। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ आपने याद किया है, उसको यहां पर काम में लाकर हमें क्या करना है, प्रिपेयर अ प्रोफाइल और फैक्ट फाइल ऑफ पीवी सिंधु यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनका इस्तेमाल करके, उनकी मदद से हमें पीवी सिंधु का एक प्रोफाइल बनाना है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज full name. What is the full name of P.V. Sindhu? In it, P stands for Pusarla Venkata Sindhu. Date of birth, 5th July. The actual date is 5th July in the year 1995. P.V. Ramana is her father and P. Vijaya is her mother. Next point is native of, PV Sindhu is native of Andhra Pradesh. She started badminton at the age of 8. When she was of 8 years old, she started playing badminton. Mehboob Ali was her first coach and Pulela Gopichand second one. Her first major achievement as junior, that was the 5th Servo All India Ranking Championship for under 10 category. Next point is first international win. What was the first international win of PV Sindhu? It was when she won a bronze medal in 2009 Sub-Junior Asian Badminton Championship. It was held in Colombo in Sri Lanka. Next point is honors she received
उसको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? Those are first of all, she got Arjun Award in 2013. Later, she was honored by Padma Shri in 2015, and after that year, in 2016, she got Rajiv Gandhi Khel Ratan Award. 2016 में उन्हें ये अवार्ड दिया गया. Next point is greatest win in 2016. 2016 में पीवी सिंधु की सबसे बड़ी सक्सेस, सबसे बड़ी उपलब्धि, उसकी कामयाबी क्या थी? To this we can say that she won the silver medal in the finals in the Rio Olympic. 2016 में रियो में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें फाइनल में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था. And the last point is her great strength. उसकी सबसे बड़ी ताकत या कुवत क्या है? To this we can say that her attitude and never say die spirit. कभी हार नहीं मानना, never say die spirit, कि चाहे जो हो जाए, I have to win. These were the points by which we just prepared a profile. Our next section is we have to find answer of the questions. First question is what made Sindhu take up badminton at the age of 8? 8 साल की उम्र में पीवी सिंधु को किस चीज ने बैडमिंटन खेलने के लिए मजबूर किया, या कौन सी चीज थी जिसने उसको बहुत ज्यादा अंदर से जो तो प्रोत्साहित किया? The answer is inspiration she drew from Pulela Gopichand's victory in All England Open Badminton Championship. जब वो 8 साल की थी, पुलेला गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती. उससे प्रेरित होकर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन को चुना. नेक्स्ट, what were Sindhu's achievement till she was 14 years old? 14 साल की उम्र तक पीवी सिंधु ने कौन से अचीवमेंट्स हासिल किए थे? To this, the answer is Sindhu won 5th Servo All India Ranking Championship for under 10 category, and she also won the single title at the Ambuja Cement All India Ranking. Third question is what history was created by PV Sindhu in 2016? 2016 में पीवी सिंधु ने क्या तारीख रकम की, कौन सा इतिहास रचा? और उसी का सेकेंड पार्ट है व्हाट वाज हर विक्ट्री इन द फॉलोइंग ईयर? उसके नेक्स्ट ईयर में उसकी पीवी सिंधु की क्या विक्ट्री थी? द आंसर इज शी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय रीचिंग द फाइनल इन द रियो ओलंपिक्स एंड वन सिल्वर मेडल. 2016 का जो रियो ओलंपिक था उसमें फाइनल में पहुंचना और वहां सिल्वर मेडल जीतना, ये इतिहास था जो पीवी सिंधु के जरिए रचा गया. नेक्स्ट पार्ट का आंसर है इन 2017 में डिफीटिंग कैरोलिना मैरिन, शी वन द 2017 इंडियन ओपन सुपर सीरीज टाइटल. 2017 में कैरोलिना मैरिन को हराकर इंडियन ओपन सुपर सीरीज टाइटल पीवी सिंधु ने जीता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ पीवी सिंधु? पीवी सिंधु के वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन सी फीचर्स हैं जो पॉजिटिव हैं? द आंसर इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ Sindhu's game is her attitude and never say die spirit. Next question is what role do Sindhu's parents play during her important matches?
जब कभी पीवी सिंधु का इम्पोर्टेंट मैच होता था तो उसके पेरेंट्स का क्या योगदान रहा, उन्होंने किस तरह से रोल प्ले किया? द आंसर इज दे accompany her when she practice and play. They tell her what she is doing. वो हमेशा उसके साथ रहे और उसकी प्रैक्टिस और खेल के बाद उन्होंने उसको बताया भी कि उसने किस तरह से परफॉर्मेंस किया, कैसा खेला। स्पेशली हर डैड गेव हर अ समरी ऑफ हाउ शी प्लेज। उसका डैड जो थे वो हमेशा उसे ब्रीफ में बताया करते थे। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज डज सिंधु कन्वे इन द लास्ट पैराग्राफ? सबक का जो बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है उसमें पीवी सिंधु ने हमें कौन सा मैसेज दिया है, क्या पैगाम दिया है? द आंसर इज द टॉप प्लेयर्स ऑलवेज हैव अ प्रेशर, कि जो टॉप के खिलाड़ी होते हैं उनके ऊपर हमेशा प्रेशर होता है। किस चीज का? टू विन, जीतने का। बट इट इज इम्पॉसिबल, ये शक्य नहीं है, मुमकिन नहीं है। इट फील्स बैड लूजिंग अर्ली बट यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। अगर आप जल्दी हार जाते हो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपको उस सिचुएशन से उभरना है, उससे बाहर निकलना है। किस तरह से? वन शुड प्रैक्टिस हार्डर एंड लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक्स से सीखना है, प्रैक्टिस करना है। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन वंस करियर। करियर में उतार चढ़ाव होते हैं। वी हैव टू कोप विथ इट, हमें उसी के साथ में मैनेज करना है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज imagine that PV Sindhu has recently won very important tournament at international level. Frame an email on behalf of your school to congratulate her. Use the proper email format. या हमको इमेजिन करके लिखना है कि पीवी सिंधु ने रिसेंटली कोई एक टूर्नामेंट जीता है और हमें हमारे स्कूल की तरफ से, स्कूल के बिहाफ पीवी सिंधु को एक ईमेल करना है। आप जानते हैं ईमेल का तरीका, जिस तरह से हम कन्वेंशनल लेटर्स लिखते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक उसी की फॉर्म है। तो उसमें सबसे पहले जो फ्रॉम का, जहां फ्रॉम लिखा हुआ होता है वहां पर आप अपना ईमेल आईडी टाइप करेंगे। हम यहां पर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं xyzschool@gmail.com। अब टू करके जिसे हमें मेल सेंड करना है वहां पर आएगा पीवी सिंधु का ईमेल आईडी एड्रेस, दैट इज pvsindhu@gmail.com। ये हमने ले लिया। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स हमारा मकसद, उद्देश्य क्या है, हम क्यों वो मेल टाइप कर रहे हैं। तो हम वहां पर लिख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट। एक बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने की खुशी में हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं। ऑलवेज माइंड वन थिंग, हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, वेन एवर वी टाइप एन ईमेल इट शुड बी ब्रीफ, इट शुड बी शॉर्ट। जब कभी भी हम कोई ईमेल टाइप करते हैं वो छोटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम कोशिश करते हैं, वी विल बिगिन विथ डियर सिंधु, होप यू आर डूइंग वेल। We just received the news of your win in women's singles at the 2019 BWF World Championship के हमें अभी ये न्यूज़ मिली कि आपने 2019 का जो BWF विमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुआ था वो आपने जीत लिया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, हमें आप पर गर्व है, आप पर फख्र है। वी कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इस जीत पर हम आपको मुबारकबाद देते हैं और साथ ही साथ आपके फ्यूचर के लिए आपको नेक तमन्ना पेश करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर टुडेज लेसन। ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, दैट इज लैंग्वेज स्टडी। उसमें क्या है, वी विल ट्राई टू सी
व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये हम देखेंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू गो थ्रू द सेंटेंसेस गिवन देयर। यहां पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, पहले हमें उन्हें पढ़ना होगा। द फर्स्ट वन इज ही इज इंटेलिजेंट एंड ही इज हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट वन इज आसिफ वॉज टायर्ड but he could not rest. Third one is you can go for a walk or you can exercise at home. And the last question is Seema has recovered from fever, so she can attend school. In all these sentences, each and every sentence has clause which are not dependent on other for the sense. चारों जुमलों में हम जो देखेंगे कि कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं, वो उसके लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं है, उस पर निर्भर नहीं है। Such clauses are joined by conjunctions like and, but, or, so. These conjunctions are called coordinators. दो अलग अलग पार्ट्स को, सेंटेंस के दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के लिए बीच में जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, हम उसे कोऑर्डिनेटर कहते हैं। कुछ कोऑर्डिनेटर्स जो हैं एंड, और, बट, सो, ये चार तो ऊपर सेंटेंसेस में जो दिए गए हैं उसमें यूज किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर फ्यू मोर वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज कोऑर्डिनेटर्स। कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं जो कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। व्हाट आर दोस? एज वेल एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, yet, still, however, nevertheless, or, nor, else, either or, neither nor, therefore, thus. All these words are used as coordinators. ये सारे words जो हैं coordinators के तौर पर यूज होते हैं। So, by the help of these points, we have to tackle the next few questions. सेकेंड नंबर पर हमें कुछ sentences दिए हुए हैं, हमें उनमें क्या करना है? We have to pick coordinate clause and encircle the coordinator. जो जुमले दिए हुए हैं उसमें coordinate clause हमें पहचानना है, और जो coordinating word है, जो coordinators हैं, हमें उसे मार्क करना है। So, we can move on. The first one is, she bagged a silver medal and she found a place in the international team. There are two phrases. The first one is, she bagged a silver medal. ये first part हो गया, first clause हो गया। The second clause is, she found a place in the national team. National team में उसने अपनी जगह मजबूत कर ली। Both of these clauses are joined by and. So and is the coordinator. Next one is, PV Sindhu is an ace shuttler, but she was born to volleyball players. In the second sentence, we can say that the word but is used as coordinator and it is joining the two clauses. The first one is, PV Sindhu is an ace shuttler, and the latter part is, she was born to volleyball players. The third one is, you must play well or you lose the first round of play. You must play well. This is the beginning part used as independent clause, and the lateral part is, you lose the first round of play. इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए वर्ड और का यूज किया गया है।
And the last but not the least is my parents point out my flaws so I can improve my games. My parents point out my flaws. मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे फॉल्ट्स और मेरा जो भी गेम होता है वो पॉइंट आउट करते हैं. किस लिए? सो आई कैन इम्प्रूव माई गेम. मैं अपने गेम को इम्प्रूव कर सकूं. एक तरफ फ्लॉज को पॉइंट आउट करना, दूसरी तरफ गेम को इम्प्रूव करना. इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड एज अ कोऑर्डिनेटर यूज किया गया है, इट इज सो. So this is all about we have for today's lesson. I hope कि जो कुछ भी पॉइंट हमने कवर किया ये आपको समझ में आया होगा और आगे आपकी स्टडीज के लिए आपको हेल्पफुल होगा. बिफोर वी सम अप, आई वुड लाइक टू से stay connected, stay safe. Thank you. Before we can conclude, I would like to say stay safe, stay connected. Thank you.